Hello dear students, welcome to this online lecture. Uh, Today we have one of the interesting part from the organic chemistry for BSc second year and semester 4, that is reactive methylene compounds. So reactive methylene compounds are nothing but the what? So this group is called as what? CH2, okay, and basically so when that group attach with some groups, particularly other groups, that will be called as what? Methylene group. Particularly this CH2 is called as a methylene, and when that CH2 is connected with some reactive functional group, then that CH2 is said to be what? Reactive methylene compounds, okay. And there are what? Various reactions are there for reactive methylene compounds, okay. So stay connected with us, we will definitely sure that you will enjoy this lecture and you will get more knowledge regarding this reactive methylene compounds. So one more thing is that the reactive methylene compounds are nothing but the what? A CH2 should connected with the reactive functional group, because that CH2 is called as a methylene, okay. So that methylene when connected with some reactive functional group like nitro group, like acidic group, etc., we can take any example, okay. So that groups are called as a reactive group, and reactive groups are when attached to CH2, then that CH2 is said to be reactive methylene compounds. So let me see the syllabus, particularly from your semester number 4, okay. First we have, this is a chapter, that is first part is polynuclear aromatic hydrocarbon. In that what? Naphthalene is given, okay, and we discussed the what? Already discussed this properties of a naphthalene. Now today we are interested in what? The discussion of the this compound, that is called the that is a reactive methylene compounds. Now the first example of reactive methylene compound is malonic ester. What is that malonic ester? How to prepare it, and what are the applications? Very simple, okay. Okay, fine. So then we have the synthesis, that means from malonic ester we can synthesize the acetic acid, we can synthesize also succinic acid, glutaric acid, crotonic acid, and malonyl urea. All are the important compounds which are obtained from malonic ester, okay. So another part from this reactive methylene compound is acetoacetic ester, okay. So here also the all again synthesis and applications are what there. Definitely we will going through the all portions, particularly from the reactive methylene compound. So stay connected with us, okay. So first of all, so this is our what? YouTube platform, okay. So you will get very interesting and very informative videos regarding this chemistry as per your competitive exams or as per your syllabus concern. So if you still not visited to this channel, so go through it and just subscribe, as well as you can visit first then subscribe, okay. And you can if you like this content of what? Any video particularly, okay, which is applicable to you, you can like and give a valuable your comment, okay. Thank you for that. So okay, let's start first part of this lecture, that is what is the compound that is called as a reactive methylene compound. So very first of all, what is the reactive methylene compounds now, okay. So I already told you that a methylene group is nothing but the what? That CH2 is there, okay. So this CH2, you know that carbon is a tetravalent system and there is a 4 valency. So when this CH2 is attached with simple hydrogen, then it is an your hydrocarbon, that is a methane molecule. If I replace that 2 hydrogen by a reactive group, example, you know that the groups are classified as a electron donating group and electron withdrawing group, right. What is electron donating groups now? Electron donating groups are nothing but the group in which electron donating atoms are present. So example, lone pair system, okay. So we have what? OH, we have example is NR2 or NH2, okay. We have example OCS3, OMA. See, even methyl group is also be act as a electron releasing group or electron donating group, okay. You know that according to the electronic effects, as already you learn in the semester number 1 or 2. Now what is electron withdrawing group now? Withdraw means withdraw, it withdraw the electron toward itself. Withdrawing groups are nothing but those group which having electronegative elements. Remember this one,
electron withdrawing groups are nothing but the group having electronegative element. More the number of electronegative element, more will be the withdrawing tendency. Okay, it withdraw the electron from carbon. Now what about the chemistry of this one? Suppose when carbon is attached to donating group or carbon is attached to withdrawing group, so where will the electron flow? The electron will be pulled toward the carbon when we have donating group, and when we have withdrawing group, the electron will be what? Pull from the carbon to withdrawing substance. Okay, this is the difference between. And now you can check the reactivity. Now here becomes a carbon becomes a deficient, okay, and this becomes a rich, but in that case, so this will becomes a, what will be the charges will be appear? Negative, and here positive. Look at the difference now, and that's why that carbon is an active carbon. Okay, so electron withdrawing groups are those group having electronegative element. Which are electronegative element? Example we have NO2, example we have carbonyl, example aldehyde, example ketone, example acid, example ester, okay, example acid chloride, example is what? We have amide, CONH2. So there are various examples are there, in which you can see that, you can observe that there is a withdrawing group is there, withdrawing elements are there, that means electronegative elements are there. Okay, even CF3, C, that means CX3 general formula. So these groups are called as a electron withdrawing group. What will happen when these groups are attached to that carbon? So that means carbon becomes a deficient, and that's why the carbon will have the some more activity, and so that CH2 is called as a reactive methylene compound. Okay, now I will give the some short summary regarding this one. Suppose I have, this is an hydrogen, right, and when I connected with electron withdrawing group, now that CH2 is called as a, active methylene group. Okay, is it clear? This will be called as a active methylene group now, and so it show the different reactions. Okay, suppose I want to replace that hydrogen, that means, so whether this hydrogen is acidic? Yes, this hydrogen is acidic. So suppose I have the base, then what is the chemistry of base now? Base always abstract the hydrogen. So if hydrogen is abstracted by base, what will be generated now? It will be generate the negative charge on the carbon, right, and here is the electron withdrawing group, here is the electron withdrawing group. You know the resonance condition, the negative charge means it is a full of octet, so that negative charge can be what? Stabilized by which group? Electron withdrawing group. Okay, and that's why that methylene group is called as a active methylene group. So this negative charge is stabilized also by withdrawing group. This negative charge also be as a source of a nucleophile, it is also a source of nucleophile. So there is a lot of chemistry in the reactive position. So just we have to substitute, just we have to put the what? Electron withdrawing group, okay, on this carbon now. Okay, this is the first of all the reactive methylene compound. Okay, now in your syllabus what? The first compound is given, that is called as a malonic ester. You know that the malonic ester means what? You know the first of all carboxylic acid. So this CO2H is the carboxylic acid. Okay, what is the formula for that? C double bond OH. This is called as a carboxylic acid. Okay, so if I put the hydrogen, it becomes a formic acid. If I put this methyl group, it is acetic acid. Okay, you know that some examples are dicarboxylic acid. What are the dicarboxylic acid? Look at this, CO2H and CO2H. This is the first example of dicarboxylic acid, that is called as a oxalic acid. ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक एसिड. सपोज मैं अगर इन दोनों के बीच में CH2 को पुटअप करता हूँ, सपोज आई पुट द CH2, तो ये क्या हो जाएगा? कितने कार्बन वाला हो गया? 3. कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3. देयर आर 3 कार्बन्स आर देयर. सो इट इज ऑल्सो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बट it is having CH2 group. So that compound is called as a malonic acid. What is the name of this compound? It is malonic acid. And you know the reaction of acid plus alcohol, what will happen? Suppose I have, this is carboxylic acid, and when I reacted with alcohol, what will happen? You know that there is an esterification process. When acid combine with alcohol, the hydrogen from alcohol, okay, and OH from the acid
will be eliminated, that is at a dehydration process, and undergo the what, C double bond O, and this is R. So this part is coming from alcohol and this part is coming from acid. So same way, when malonic acids are treated with 2 equivalent of alcohol, how many? 2 equivalent of alcohol, what will happen? That OH from one acid group will be replaced by hydrogen. So what will be get now? You will get the CH2, C double bond OR, suppose I have the dash, and C double bond O, and this is R dash. So this compound is called as your malonic ester. Okay. Now why this CH2 is called as active methylene group? Because of, you know, that acid is also withdrawer, acid is also active group, and ester is also a active group now, and that's why that CH2 is simply mentioned as a star, that indicate that it is a active methylene group. Okay. So how one can prepare that compound now? तो सिंपल हमने क्या किया, जो मैलोनिक एसिड लिया और उसको क्या किया हमने, यहाँ पे मैलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन किसकी की हमने, अल्कोहल के साथ. तो सबसे पहले आपको ये जनरल पता होना चाहिए कि मैलोनिक ईस्टर है क्या चीज़ है. सो इट इज़ ए व्हाट, क्या बोलेंगे इसको अपन, ये डाई ईस्टर है. ये एक ईस्टर ग्रुप यहाँ पे, दूसरा ईस्टर ग्रुप यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड एज अ डाई एस्टर. ओके. सो दिस विल बी कमिंग फ्रॉम मैलोनिक एसिड और इसका नाम जो है वो हो गया आपका मैलोनिक एस्टर. अभी हम देखते हैं अगर हमने R चेंज किया तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू दैट R नाउ. ओके, जस्ट वेट. सो सपोज अगर मेरे पास R जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये CH2 और ये लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख दिया मैंने इथाइल ग्रुप. R मतलब कौन होता है, अल्काइल ग्रुप. ठीक है. तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, इसको बोला जाता है डाई इथाइल मैलोनेट. डाई इथाइल मैलोनेट. अब ये डाई इथाइल मैलोनेट मतलब क्या होता है, इसको DEM इसका शॉर्ट फॉर्म है, DEM. ओके. दिस इज कॉल्ड एज ए डाई इथाइल मैलोनेट. तो ये कंपाउंड कैसे बनाया हमने, सिंपल मैंने क्या किया, मैलोनिक एसिड लिया होगा. ठीक है. देखो मैलोनिक एसिड मैं लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है. और इस मैलोनिक एसिड को मैंने क्या किया है, इट ट्रीटेड विद द 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल. लेकिन ये R कौन है आपका, यहाँ पे R इज इक्वल टू आपको इथिल ग्रुप लिखना है. ठीक है. तो क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरा, CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, इथाइल ग्रुप. इधर CH2 C डबल बॉन्ड O और ये इथाइल ग्रुप. यानी कि हम क्या करते हैं, एसिड का OH और अल्कोहल का H. तो ये जो प्रोडक्ट आपका बन गया है इसको क्या बोला जाता है, डाई इथाइल, क्या बोलेंगे इसको हम, मैलोनेट. बराबर है. या फिर इसको सिंपल कंपाउंड का नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज ए मैलोनिक एस्टर. क्या नाम है इसका, इट इज़ कॉल्ड एज ए मैलोनिक एस्टर. तो वेरी सिंपल कंपाउंड है आपका. अब हमको देखना है ये कंपाउंड को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है. ठीक है. यह कंपाउंड जो है बेसिकली ये जो कंपाउंड हमने देखा अभी, सिंथेसिस तो वेरी सिंपल है. आपको क्या करना है, एसिड लेना है मैलोनिक एसिड और उसके साथ आपको अल्कोहल की रिएक्शन करनी है तो आपका कंपाउंड बनेगा. अब हमको ये देखना है कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं. इसकी केमिस्ट्री किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज जस्ट द CH2 ग्रुप नाउ. ठीक है. चलिए अब मैं बताता हूँ इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है. ठीक है. सपोज अभी जैसा हमारा जो कंपाउंड था, मैं इस फॉर्म में इसको लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा. ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH. क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसको हम बोलेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि मैलोनिक एसिड. ठीक है. अब मैं पहले क्या करूँगा, इस मैलोनिक एसिड को 2 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करूँगा, किसके साथ, इथेनॉल के साथ. बराबर है. तो ये क्या हो जाएगा, ये OH और यहाँ का एक H. तो ऐसे मिला के आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहे हैं आपके पास, 2H2O. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, ये तो इतना सेम ही रहेगा आपका. ठीक है. ये इतना सेम ही रहेगा. अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसको O और ये क्या हो गया आपका, दिस इज़ इथाइल ग्रुप, दिस इज़ आल्सो इथाइल ग्रुप. और इसको बोला जाता है मैलोनिक एस्टर. क्या नाम है इस कंपाउंड का, मैलोनिक एस्टर. मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए. ठीक है. अब मैलोनिक एस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ एक इथिल ग्रुप है, यहाँ पर इथिल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इथाइल मैलोनेट. ठीक है. ठीक है. चलिए, तो ये हो गया हमारे कंपाउंड का नाम. अब डाई इथिल मैलोनेट की केमिस्ट्री क्या होती है, ये जो CH2 ना, ये इसको बोलते हैं एक्टिव CH2. एक्टिव क्यों है,
बिकॉज इस साइड में विड्रॉइंग ग्रुप है, इस साइड में भी विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए मैं इसको स्टार लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने इस पे बेस डाल दिया, बेस समझ में आता है आपको? बेस मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होते हैं, बेसिस है। और बेस क्या होते हैं, बेस की रिएक्टिविटी किधर ज़्यादा होती है, प्रोटॉन की तरफ, जो एसिडिक प्रोटॉन जो होता है ना उसको निकालते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बेस डालूंगा, तो बेस क्या करेगा, ये जो स्टार वाला जो लिखा है कार्बन, वहाँ का वो हाइड्रोजन निकालता है। वहीं का क्यों निकालेगा, क्योंकि वो एसिडिक है। वो एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसका पी के वैल्यू देखना होता है हमको, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा तो आप पी के भी उसके बारे में देख सकते हो। तो मैंने जैसे बेस डाला, तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन निकालता है। जैसे कि मैं यहाँ पे H लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला H। तो ये बेस क्या करेगा, सिंपली H को निकालता है, H+ को, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के आपके वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो क्या बना फिर आपका। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको ETO, देन C+O। चलिए बेस ने क्या किया, बेस ने प्रोटॉन को निकाल लिया। अब प्रोटॉन को निकाला है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज, बराबर है। और इसको बोला जाता है इनोलेट। क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसको बोला जाता है इनोलेट आयन, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज। अब हमने रेजोनेंस भी पढ़ा है। रेजोनेंस में क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन पे चार्ज है, और ये चार्ज हमारा चाहिए होता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन। तो आप कहीं पे भी इस चार्ज को घुमा सकते हो, यानी कि आपका इसको बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस का एरो कैसे होता है, ये वाला डबल हेडेड एरो, ठीक है। तो क्या बनेगा, ETO C+O CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपका OAT, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। तो रेजोनेंस होता है आपका। अब अगर मुझे लगता है कि मैं इस साइड से रेजोनेंस करूँगा तो उधर भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं इधर वाले कार्बोनिल ग्रुप पे भी रेजोनेंस कर सकता हूँ। रेजोनेंस से क्या होता है पता है आपको, रेजोनेंस से स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब जो आपका नेगेटिव चार्ज है, सॉरी मैं अभी यहाँ पे बनाऊँगा ये वाला, ये डबल बॉन्ड होगा आपका, ठीक है। और देखो, यानी कि एक बार मैंने इस साइड से बनाया, एक बार मैंने इस साइड से बनाया, तो ये होता है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या करना है आपको, तो समझ में आपको रेजोनेंस कैसे हो गया इसका। तो यानी कि ये वाला जो कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, इस वजह से ये एसिड बेस केमिस्ट्री में जा रहा है और ये इनोलेट बनाता है। अब ये इनोलेट का क्या यूज़ होता है आगे, वो हमको देखना है अभी। चलिए वी विल सी द व्हाट एप्लीकेशन ऑफ दैट इनोलेट आयन। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है सपोज कि ये वाला जो है आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए डाई इथाइल मैलोनेट है ये, ठीक है, जिसका नाम है DEM शॉर्ट फॉर्म इसका। उसको क्या बोलते हैं अपन, मैलोनिक ईस्टर। मैलोनिक ईस्टर से देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे डायरेक्टली 2 अल्किल ग्रुप आ गए। ये कैसे हो गया, तो फिर ये इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, बेस डालना है। पहले क्या करोगे, बेस डालोगे। बेस क्या करता है, प्रोटॉन निकालता है। कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, CH2 के पास से। चलिए बन गया नेगेटिव चार्ज आपका, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करूँगा। किसके साथ करूँगा रिएक्शन, अल्किल हैलाइड, यानी कि RX, मतलब मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, डायरेक्टली आपका R पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो CH3 क्लोराइड में होता है, CH3X में चार्जेस कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, माइनस इफेक्ट हमको पता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक R लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, CH हो गया, ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। मतलब हमने एक बार R लगाया, फिर मैं क्या करूँगा, वापस से मुझे दूसरा R लगाना है तो मैं फिर से बेस डालूँगा। बेस क्या करता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, कहाँ से, वहीं से जो पहले किया था। फिर ये बन गया देखो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये है आपका OAT ग्रुप, इधर से भी आपका OAT ग्रुप है। अब जैसे नेगेटिव चार्ज बना, मुझे क्या करना है, सेकंड टास्क क्या रहेगा मेरा, फिर से RX में डालूंगा। अभी मैं R को R' लिखता हूँ, बस होगी रिएक्शन आपकी। तो कितना आसान है, 2 स्टेप में आपको जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका एप्लीकेशन में आपका जाता है, यानी कि तुम उस कार्बन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हम लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको ये जो कार्बन हमने लिखा है ना पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेफिशिएंट, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जो नेगेटिव चार्ज बना, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे।
और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। देखो कितनी सिंपल केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में आपका नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ये हो गया हमारा, दिस इज अबाउट द रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। तो उसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, ठीक है, वो उसके बाद हमने मैलोनिक ईस्टर को कैसे बनाया, ठीक है, वो, और उसके बाद ये उसका एक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमारा मैलोनिक ईस्टर है, ठीक है, उसको हम, जैसे मैंने इसको लिखा DEM, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये वाला, डाइथिल मैलोनेट। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको सिंपल मैलोनिक ईस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों नाम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि अगर हमने मैलोनिक ईस्टर पे क्या कर दिया, एसिड डाल दिया, तो कितना आसान है। एसिड क्या करता है पता है आपको, एसिड जो है ईस्टर को हाइड्रोलाइज करता है। और ये कौन है आपका फंक्शन ग्रुप, क्या नाम है इस फंक्शन ग्रुप का, ये ईस्टर है। और ईस्टर का अगर आप एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको अल्कोहल मिलेगा प्लस आपको एसिड मिलेगा। यानी कि हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका या एसिडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। हम वाटर में हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या हो जाएगा आपका, देखो तो वाटर में कितने H2 है ना आपका, तो H यहाँ पे जाएगा आपका, OH इधर चला जाएगा, H इधर चला गया, OH इधर चला गया। कितना सिंपल हो गया आपका। तो इसका सिंपल क्या है, मैकेनिज्म है। अब हमने क्या करना है आपको कि एक एप्लीकेशन देखना है आपको कि हाउ टू प्रिपेयर सक्सिनिक एसिड और हाउ टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम दी मैलोनिक एस्टर। तो करना क्या है इसके अंदर, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फिर इसमें मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, दोनों भी साइड में आपको ये एसिड हो जाएगा उधर। चलिए, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा आपका, आपको मैलोनिक एसिड मिल गया, मैंने अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इस कंपाउंड को हीट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इस कंपाउंड को, अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करूँगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, और जिसकी वजह से आपको जो है देखो ये CO2 इतना निकल रहा है, और CO2 निकल गया तो क्या हो जाएगा आपका, वी विल सी दैट, सो दिस इज HOC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया CH3। मतलब आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा आपको, ये आपका कौन है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। करना क्या होगा आपको, कैसे करना होता है पता है आपको, वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करो, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मैलोनिक एसिड मिलना है। देखो HOC डबल बॉन्ड O, सपोज दिस इज CH2, और ये वाला, ठीक है, ये क्या है OH, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, इसको थोड़ा मैं एक अलग तरीके से लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, सपोज मैंने इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और ये यहाँ पे मैंने बनाया AOH। क्या किया मैंने, थोड़ा सा ग्रुप को टिल्ट किया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है आपका, ये सपोज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बराबर है, और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया आपका, और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आया कैसे किया मैंने, देखो एक बार बताता हूँ आपको, HOC डबल बॉन्ड O, देन CH2, उसके बाद ये मैंने कार्बन को इस तरह से लिखा, कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है, और ये कौन है मेरा OH। ये वही कंपाउंड है ना आपका जो इससे बना है। अब क्या करूँगा मैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ बॉन्ड की तरफ, ये वाला जो बॉन्ड है आपका ये इधर शिफ्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब हम इस रिएक्शन में किसको निकाल रहे बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला हमने बाहर, देखो क्या हो गया, HO हो गया ये इधर वाला। उसके बाद इस O ने इस H को ले लिया, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं इसकी जगह, या सिंपली हम, हाँ ठीक है वो हो गया, या इसको छोड़ो जैसे है वैसे लिखो, उसको O नेगेटिव लिखो, इसको क्या लिखो, उसको O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका CH2 हो गया, ठीक है। किसी ने अगर लिखा होगा यहाँ पे H तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में आपकी क्या हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका टाटोमेरिज्म कर दूंगा। कैसे हो जाएगा, ये H हमको यहाँ पे लाना है, और ये डबल बॉन्ड हमारा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, HOC डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। यानी कि आपको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। और आपको ये दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड प्रिपरेशन फ्रॉम मैलोनिक एस्टर। रिएक्शन समझ में आ गई क्या, कैसे हुआ, कन्फ्यूजन अगर हो
मैं आपको फिर से बता दूंगा एक बार कि करना क्या है आपको। डाई इथाइल मैलोनेट जो होता है ना आपका ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली हाइड्रोलिसिस किया है इसको। और तुमको पता है हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, एस्टर का एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि ये और ये बॉन्ड आपके टूट जाएंगे और वहाँ पे एच एच आप OH लग जाएगा, यानी कि एक OH इधर आ गया, वेरी सिंपल, और दूसरा यहाँ पे आ गया, हो गया। अब इस कंपाउंड में अगर आपको CO2 निकालना है तो एसिटिक एसिड तो मिलना ही है। देखो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली, CO2 चला गया और आपको क्या मिला है, CH3CO2H। इसका नाम है इथेनोइक एसिड, या उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। लेकिन मैकेनिज्म हुआ कैसे हम वो देखेंगे, ठीक है। चल मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे लिखना है इसको। सो सपोज दिस इज HO, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा CH2 है, और यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप को आपको इस फैशन में लिखना है ताकि वो एलिमिनेशन आसान हो जाए। देखो बॉन्ड कौन कौन सा टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है आपका, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला बॉन्ड आपका टूट के यहाँ पे हो गया। मतलब आपका अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस तरह से बाहर चला गया, उसका कोई लेन देन नहीं रहा, और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या क्या मिल रहा है, देखो मैं इस कंपाउंड को किस तरह से लिखूँगा। देखो पहले इधर का OH, उसके बाद ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये O नेगेटिव है तो ये फाइनली आपका H तो इधर ही आने वाला है, मतलब यहाँ पे H आ गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड लग गया, ये कौन है आपका CH2। अब मैं इसको, हम एसिड के प्रदेश में हम इसको टाटोमेरिज्म बोलेंगे। तो टाटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना और ये यहाँ पे, मतलब ये H जो है आपका वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या बनेगा फाइनल आंसर आपका, HO, C डबल बॉन्ड O और CH3 ना। तो ये है सबसे पहला आपका एप्लीकेशन, और जिसमें हम क्या बनाते हैं, वी कैन प्रिपेयर द व्हाट एसिटिक एसिड फ्रॉम व्हाट दिस सिस्टम ना पर्टिकुलर। सो ये है हमारा रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, सो दैट इज कॉल्ड एज ए मैलोनिक एस्टर, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी लगती है तो आप गूगल फॉर्म में भी आपकी क्वेरीज जो है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक बनिए रहिएगा और स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।